Students, now today we are going to read about the graphical representation of the motion. In the graphical representation of the motion, especially here in the 9th class, we have treated two type of graph. That one is distance time graph, second is your speed time graph. Distance time graph and displacement time graph both are similar to each other, and speed time graph and velocity time graph both are similar to each other. Here we have to read about the distance time graph and the speed time graph. So first of all, we are going to read about the distance time graph. We are going to read about the distance time graph. So what is the distance time graph? A graph in which distance in a graph drawn between distance and time is called the distance time graph. In the distance time graph, distance is represented on the y-axis and time is represented on the x-axis. This is your distance time graph. Now this distance time graph is different for different type of motion. Suppose firstly we are going to read about the body in the rest position. When a body is in the rest position, in that case, after passing the time, the distance of the object from the origin will be constant. In that case, when we will draw the graph between time and distance, then for the rest body, that graph between distance and time will be a straight line, parallel to time axis. So this is the graph. When a graph is given in the distance time graph is given parallel to the time axis. So this graph represented body is in the rest position. Because at the zero time distance is here, after some time distance is here, means at distance at every point is a constant after passing the time. टाइम कितना भी पास होता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो उतना का उतना ही, वो नहीं बढ़ रहा है. मतलब कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. सेकेंड इज देयर फॉर यूनिफॉर्म motion. So we can say uniform motion, either we can say constant speed. Uniform motion or constant speed. So you know that uniform speed means when a body covers equal distance in equal time, then we can say that body is in the uniform motion. So when we will draw the graph between the distance and time for the uniform motion, that graph between time and distance, so this graph is always a straight line, inclined from the time axis. So this graph represents the uniform motion. In this case, we can see the body start to move from the origin. So this graph represents the uniform motion, either we can say constant speed. Now third is there non-uniform motion. Non-uniform motion, either we can say that variable speed, non-uniform speed. In this case, when we will draw the graph, that speed may be increased, that speed may be decreased also. In both cases, we can say that now this, when you will get a curve line, So this curve line represents that motion is non-uniform, means velocity is non-uniform. That distance time graph we can draw three types: one for the rest body, parallel to time axis; one for the uniform motion, straight line and inclined from the time axis; and third one is your non-uniform motion, which is a curve line. These three type of graph we will read in the distance time graph. Now from the distance time graph we can calculate the distance and speed. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं, कोई भी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है. इफ़ दिस इज गिवन योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. सपोज दैट ग्राफ इज गिवन इन दिस वे, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ.
In this distance time graph, just you know that slope of distance time graph, slope of distance time graph, distance time graph, the slope of distance time graph gives, क्या देता है, गिव्स स्पीड, क्या देता है, स्पीड देता है। नहीं, किसी हमारे कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट स्लोप रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी। अब जैसे हम लोग कैसे स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिंस हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। यदि मान लो हम लोग इस कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे हमको निकालना है स्लोप, इस तरह निकालते हैं किसी पॉइंट पे, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो इस ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है तो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है, ओ बी है। तो स्लोप यदि निकालना होगा यहाँ से तो स्लोप इज इक्वल टू कहेंगे परपेंडिकुलर ए बी अपान बेस क्या, ओ बी, यानी इस परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, बेस ओ बी का डिवाइड करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर ए बी है वो क्या है, जो परपेंडिकुलर ए बी है वही तो हमारा डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि वो डिस्टेंस इसके पैरेलल है, तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस की इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और जो ओ बी है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस पे है, मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा टी। और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, क्या होता है, स्पीड होता है। मतलब क्या निकल गया कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आया वो किसके इक्वल आया, स्पीड के इक्वल आया। तो किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉइंट ये भी हम लोग है कि यहाँ से स्पीड तो निकाल सकते हैं। और जैसे हम लोग ये बात करें कि ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। यदि मान लो एक बॉडी, एक कार ए है, इसका हमारा ये ग्राफ दिया है, कार ए के लिए है, और ये क्या है, कार बी के लिए, किसके लिए, कार बी का ग्राफ दिया हुआ है। और पूछ दिया गया कि इस कार ए एंड कार बी में कौन सी कार फास्ट मोशन कर रही है, किसकी स्पीड अधिक है। तो बस सिंपली हम ये फाइंड करेंगे कि इस ग्राफ में स्लोप किसका अधिक है। तो देखेंगे तो फर्स्ट वाली कार का स्लोप बस इतना ही है, सेकेंड वाली कार का स्लोप ये है। तो ये हमको पता है कि स्लोप ऑफ द डी ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बी वाले का स्लोप अधिक है, मतलब बी वाले की स्पीड अधिक होगी। ए का स्लोप कम है, मतलब ए का क्या होगी, स्पीड कम होगी। तो कह सकते हैं कि आउट ऑफ ए एंड वी इज मूविंग विथ ए हाई वेलोसिटी विथ मोर वेलोसिटी मोर स्पीड। Okay, now second point, if distance time graph is given, so with the help of distance time graph we can find the distance travel by the body at any time। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 0.5, ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, एंड सो ऑन दिया हुआ है। और पूछ दिया गया कि 10 सेकेंड पे बॉडी कितना दूर पहुँची है। तो 10 सेकेंड पे बॉडी हमारा क्या है, ए तक पहुंची है। तो जस्ट ए से हम लोग यहाँ से प्लॉन लाइन ड्रा करेंगे और डिस्टेंस को जहाँ काटेगा, तो ये डिस्टेंस को जितने पॉइंट पे काटेगा, मान लो यहाँ पे 0 है, 10 है, यहाँ 20 है, 30 है, ऐसे दिया हो गया ना। तो डिस्टेंस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है तो वही जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टाइम दिस 10 सेकेंड। यानी इस ग्राफ से कह सकते हैं कि 10 सेकंड में बॉडी कितना जाएगी, 20 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं और स्पीड को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियोज।